اکاڑا میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے 2 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ بچی کی شناخت عائشہ کے نام سے کر لی گئی۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ افسوسناک واقعے پر علاقے کی فضا سوگوار۔ پتوکی کے نواحی گاؤں میں وابڈا کی مبینہ غفلت کے باعث ایک اور معصوم بچے کی جان چلی گئی۔ 5 سالہ زین زندگی کی بازی ہار گیا۔ اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے، اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ قصور پولیس تھانہ اے ڈویژن کے علاقے کھارا چونگی کے قریب قتل کی واردات۔ شفاق شخص نے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ بہاولپور میں تھانہ کوتوالی کی حدود میں 17 سالہ خواجہ سرا کا قتل۔ ملزمان نے شہزیب عرف عائزہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قتل کی واردات پر خواجہ سرا کمیونٹی سراپا احتجاج بن گئی۔ DPO سے ملزم کو گرفتار کر کے کڑی سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ اور مٹیاری کے نواحی گاؤں کے مکین پریس کلب کے باہر سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بااثر شخصیات ہمیں گاؤں سے نکالنا چاہتی ہیں، اعلیٰ حکام انصاف فراہم کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں ذکی ارشاد۔ ایڈنس آپ نے جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اکاڑا میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے 2 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے کار کو تحویل میں لے لیا۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ 2 سالہ بچی گھر کے باہر کھیلتے ہوئے کار کی زد میں آ کر شدید زخمی ہو گئی تھی۔ 2 سالہ بچی عائشہ کو شدید زخمی حالت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال اکاڑا منتقل کر دیا گیا، جہاں ڈاکٹر نے انتہائی تشویشناک حالت کو دیکھتے ہوئے سائیول ہسپتال کے لیے ریفر کیا، لیکن 2 سالہ عائشہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سائیول ہسپتال جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گئی۔ پتوکی کے نواحی گاؤں روٹے میں وابڈا کی مبینہ غفلت کے باعث ایک اور معصوم بچے کی جان چلی گئی۔ 5 سالہ زین اپنے گھر کی چھت پر کھیل رہا تھا کہ اچانک چھت پر سے گزرنے والی مین تاروں کو چھو کر زندگی کی بازی ہار گیا۔ 5 سال قبل زین کی دادی بھی انہی تاروں کو چھو جانے سے جاں بحق ہوئی تھی۔ اہل علاقہ کا احتجاج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بجلی کی ہائی وولٹیج تاریں مکانوں کی چھتوں سے صرف 1.5 فٹ کی اونچائی پر ہیں۔ متعدد بار وابڈا حکام کو درخواستیں دی مگر تاحال کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اعلیٰ حکام کو فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ قصور پولیس تھانہ اے ڈویژن کے علاقے کھارا چونگی کے قریب افسوسناک واقعہ۔ شفاق شخص نے اپنی بیوی کو قتل کر ڈالا اور 1.5 ماہ کا بچہ چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا۔ مالک مکان کے مطابق 15 روز قبل ملزم نے مکان کرائے پر حاصل کیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر 1.5 ماہ کی بچی کو تحویل میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ بہاولپور میں تھانہ کوتوالی کی حدود میں 17 سالہ خواجہ سرا کا قتل۔ ملزم نے شہزیب عرف عائزہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قتل کی واردات پر خواجہ سرا کمیونٹی سراپا احتجاج بن گئی۔ DPO سے ملزم کو گرفتار کر کے کڑی سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں تھانہ کوتوالی کی حدود میں 17 سالہ خواجہ سرا کا قتل۔ ملزم نے شہزیب عرف عائزہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قتل کی واردات پہ خواجہ سرا کمیونٹی سراپا احتجاج بن گئی۔ DPO سے ملزم کو گرفتار کر کے کڑی سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ نارنگ منڈی میں انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ جب جوان بہو انتقال کر گئی تو ساس یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی، وہ بھی دنیا سے کوچ کر گئی۔ مزید جانتے ہیں قمر گلاٹی کی رپورٹ میں۔ نارنگ منڈی میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ جب جوان بہو انتقال کر گئی تو ساس صدمہ برداشت نہ کر سکی اور وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ نارنگ منڈی صدر بازار میں نان بائی ایسوسی ایشن نارنگ منڈی کے سینئر عہدیدار اشفاق شاہ کی اہلیہ، جو لاہور میں اسپتال میں کینسر کے مرض کے باعث زیر علاج تھی، نرسنگ سٹاف کی
गफलत की वजह से जान बहक हो गई। जब ये खबर घर में अहल खाना को मिली तो अशफाक शाह की वालदा, जो अपनी बहू से वालहाना मोहब्बत रखती थी, इस सदमा को बर्दाश्त न कर सकी और वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। इस तरह एक ही घर में दो अमवात से ख़ानदान में सब मातम बिछ गई। हर अशबार थे। जब एक ही घर से दो जनाजे इकट्ठे उठे तो कहराम मच गया। चीखों पुकार से कान पर आवाज़ सुनाई न देती थी। नमाज जनाजा में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि उम्मीदवार MNA डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काज़मी ने तज़ियत की। कराची में कलेक्ट्रेट कस्टम्स इन्फोर्समेंट ASO की कार्रवाइयां, करोड़ों रुपए मालियत की स्मगल शुदा अशिया बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। कलेक्ट्रेट कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची के एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन ASO ने कराची में कामयाब कार्रवाइयां की हैं। तर्जुमान के मुताबिक मोचको हाईवे चेक पोस्ट पर तैनात अमले ने दौरान चेकिंग बलूचिस्तान से कराची पहुंचने वाली मुसाफिर बस, जिसमें खुसूसी तौर पर खुफिया खाने भी बनाए गए थे, तह के जिसके खुफिया खानों से करोड़ों रुपए मालियत की स्मगल्ड अशिया बरामद करके बस और सामान को तहवील में लेकर जब्त कर लिया है। जब्त शुदा अशिया में आईफोन, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, सिलाई मशीनें, ईरानी कुकिंग ऑयल, गैर मुल्की सिगरेट्स, गैर मुल्की लेडीज जेंट्स कपड़ा व दीगर मुतफरक अशिया शामिल हैं। दूसरी जानिब खुफिया इतला मिलने पर नाज़िमाबाद कराची के इलाके से गुजरने वाले मजदा ट्रक, जो कि कचरा लदा हुआ था, रोक कर कचरे के नीचे खुफिया तरीके से छुपाए गए 4.5 करोड़ रुपए मालियत के स्मगल शुदा इंडियन गुटके के बोरे बरामद करके मजदा ट्रक समेत जब्त किया है। तर्जुमान के मुताबिक दोनों कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और आगे बढ़े, आपको बताएं कि शेखुपुरा में SHO जहीर आलम शाह और उनकी टीम की बड़ी कार्रवाई। रमजान उर्फ सेक्रेटरी डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार करके लाखों रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया। मुलजमान में रमजान उर्फ सेक्रेटरी जावेद और मुदस्सिर हुसैन शामिल हैं। मुलजमान के कब्जे से नकदी समेत 16 लाख रुपए का माल मसरूका और असलहा बरामद कर लिया गया। मफरूर मुलजमान में साकिब और साहिल की तलाश जारी है। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि मुल्तान पुलिस की कार्रवाई फैसल पांडा गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में गैंग सरगना फैसल पांडा और मोहम्मद सजाद शामिल। गिरफ्तार मुलजमान से 2,50,000 रुपए से ज्यादा मालियत का माल मसरूका, जिसमें एक मोटरसाइकिल, 2 लाख रुपए नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा शामिल बरामद कर लिए गए। ANF का मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुलजिम के जूतों से 434 ग्राम हीरोइन बरामद कर ली गई। इस्लामाबाद ANF 11 मरकज में कार्रवाई करते हुए अफगान बाशिंदे से 70 नशावर गोलियां बरामद की। ANF और FC की खैबर में मुश्तरका कार्रवाई में प्लास्टिक के थैलों से 36 किलोग्राम चर्स और 1 किलो 500 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। कोयटा और तखान हाईवे पर 2 मुख्तलिफ कार्रवाई में मजमूई तौर पर 51 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सेवन शरीफ के नवाही इलाके भान सईदाबाद में तरक्याती कामों में सरेआम करप्शन का इंकशाफ। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जाने वाले ड्रेंच नाली में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने लगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के आबाई शहर भान सईदाबाद तरक्याती कामों की मद में सरेआम करप्शन, करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जाने वाले ड्रेनेज नाले में मुबैना तौर पर बड़ी करप्शन का इंकशाफ, नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने लगा। करप्ट अफसरान ने लगाम हो गए बना किसी खौफ के अवामी टैक्स से ज़रूरी तामीर ड्रेनेज नाले में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन, जबकि रुश्वत लेकर अफसरान भी खामोश तमाशाई। ठेकेदार बिना खौफ के मुबैना करप्शन करने लगा। ज़ेर तामीर ड्रेनेज नाले में सरेआम नाकिस क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ। शहरियों की जानिब से मामले पर वज़ीर आला सिंध से नेब कोर्ट सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली रजा मेमन के साथ मोहम्मद अली मेमन, कोहिनूर न्यूज़।
मटियारी के नवाही गांव के मकीन प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाद से शख्सियात हमें गांव से निकालना चाहती हैं, आला हुकाम इंसाफ फराहम करें। यहाँ पे आपको बताएं कि मुटियारी के नवाही गांव के मकीन प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाअसर शख्सियात हमें गांव से निकालना चाहती हैं, आला हुकाम इंसाफ फराहम करें। मुटियारी में कौमी अवामी तहरीक की जानिब से मुटियारी के बुनियादी मसाइल के हल के लिए प्रेस क्लब मुटियारी के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मज़ीद जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। कौमी अवामी तहरीक की जानिब से मटियारी के बुनियादी मसाइल के हल के लिए प्रेस क्लब मटियारी के सामने भूख हड़ताल करके मुजाहिरा किया गया। हड़ताल की सरबराही कौमी अवामी तहरीक के सदर माजिद अली खासकली, नईम अली, रहमतुल्लाह तुर्क, जाहिद मेमन, जफर खासकली, नाना उस्मान और अल्ताफ खोसो कर रहे थे। ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारे 4 मुतालबात हैं। मटियारी जिले हॉस्पिटल को चालू करें, को पानी आया है वो शहर के चारों तरफ जो घेरा हुआ है उस पानी को निकाले। मसला है जो पूरी सिंध में गैस की लोड शेडिंग है उसको खत्म किया जाए। लोग आए हैं बाहर से, जो भी आए हैं सिंध में आए हैं उनको अपने गांव वापसी भेजा जाए। जिले का जो बहुत बड़ा मसला है, में हमारे डिस्ट्रिक्ट में गैस का बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी लोड शेडिंग हो रही है। हमारी मटियारी डिस्ट्रिक्ट की हॉस्पिटल जो बनी हुई है कई सालों से वो अभी तक चालू नहीं हुई है। इनमें अफगानी बैठे हुए हैं, उनको सिंध से निकाली दी जाए। गैस का प्रेशर है ही नहीं। अब पानी अभी तक जो बरसात का है वो वहीं जो है वो जो खड़ा है। सारे मसाले शहर के इनको सरकार को और जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं इनको तवज्जो देनी चाहिए। मटियारी जिले में हॉस्पिटल बनी हुई है, गैस की लोड शेडिंग जो है वो भी बहुत ज्यादा हो गई है। जो मटियारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको बहाल किया जाए, वो पानी शहर से निकाला जाए, डिस्पोजल वगैरह ना वो भी बंद पड़े हुए उनको फाल किया जाए। मुतालबात हैं मटियारी में गैस की लोड शेडिंग को खत्म किया जाए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, मटियारी शहर में बरसाती पानी की निकासी की जाए और गंदे पानी के तालाब फौरी तौर पर खाली किए जाए और सिंध से बंगाली और अफगानी को निकाली दी जाए। उन्होंने कहा है कि ये हमारे 4 मुतालबात मंजूर किए जाएं। अगर हमारे ये मुतालबात नहीं माने गए तो एहतजाजी मुजाहरे का दायरा वसी किया जाए। कैमरा में और अब आपको खबर दें कि उकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट बार वकला की हड़ताल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने मुलाकात में 1 हफ्ते के लिए हड़ताल मौखर कर दी। सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल का कहना है कि राना आसिफ एडवोकेट के मामले पर पेशरफ्त न होने पर अदालती बाइकाट किया जा रहा है। वकला का मुतालबा है कि अदालत आलिया फौरी तौर पर तौहीन अदालत को कार्रवाई खत्म करने का हुक्म दे। यहाँ पे आपको बताएं कि उकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट बार वकला की हड़ताल, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात में 1 हफ्ते के लिए हड़ताल मौखर की गई। सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल का कहना है कि राना आसिफ एडवोकेट के मामले पर पेशरफ्त न होने पर अदालती बाइकाट किया जा रहा है। वकला का मुतालबा है कि अदालत आलिया फौरी तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई को खत्म करे। और बुहाना में आटे और घी के हसूल में सार्फिन को मुश्किलात का सामना। सार्फिन यूटिलिटी स्टोर्स पर इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों का कहना है कि कोर्ट सिस्टम के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है, घंटों लाइनों में लगना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। कोटरी में गरीब आबादी कॉलोनी के कब्रिस्तान में सीवेज का गंदा पानी दाखिल होने लगा। कब्रें मस्मार होने से अहले इलाका सरापा एहतजाज। शहरियों का कहना है कि हमारे अबवा जदाद की कब्रें मस्मार हो रही हैं, मरने के बाद भी सुकून नहीं दिया जाता। कब्रिस्तान के 4 दीवारी और गेट के लिए लाखों रुपए का फंड मंजूर हुआ, लेकिन वो भी हड़प कर लिया गया। अहले इलाका ने वजीर आला सिंध और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फौरी शफाफ इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया है। तहसील शबकदर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने पेशावर शाहरा को ब्लॉक कर दिया, जिसके बायस मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रावलपिंडी के इलाका ढोब खसूस में डॉक्टर शफकत मलिक का एहसन इकदाम। गैस पाइपलाइन की सफाई पर अहले इलाका ने शुक्रिया अदा किया। मजीद जानते हैं नमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी ढोब खस्सू में महकमा सुई गैस की जानिब से पाइप लाइनों में सफाई के लिए कंप्रेसर मंगवाने पर अहले इलाका ने चेयरमैन UC5 डॉक्टर शफकत मलिक का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर मोज़िज़ीन ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि गैस दफ्तर गए थे, मेरे साथ जनाब खालिद महमूद साहब, हमारे काउंसलर सरवर, हम पूरे गए थे वहाँ पर जाके गैस की लाइनों की सफाई के लिए कंप्रेसर का GM साहब ने भेजा है। हम उनके मशहूर हैं कि कंप्रेसर उन्होंने भेजा और आज लाइनों की सफाई होगी इंशाल्लाह। इससे गैस में कुछ
GM साहब इंतहाई कोऑपरेटिव आदमी हैं जी, उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया। ये उन्होंने पूरी टीम को उसको बुलाया, साथ उन्होंने जो टाइम दिया उस टाइम पर हमें टीम हमारे पास भेज दी। वक्त की 10.5 इंजेक्शन के तौर पर जो हो सकता था वो उन्होंने करके दिया। जैसे कि सबर साहब हम तीनों गए थे वहाँ GM मुख्तार शहनशाह साहब से मुलाकात हुई। हमने उन्हें कहा जी कि तकरीबन 4 दिन से ठीक आ रहा है, लेकिन मैं अभी ये मुझे बात करते थोड़ी शर्म आ रही है कि 2 दिन से प्रेशर बिल्कुल नहीं आ रहा और 2% की अक्सर आबादी जो महरूम है गैस से, तो अभी कोई गैस का हमला आया है और वो आकर अभी कंप्रेसर लगा के चेक करेगा कि गैस की जो क्यों नहीं आ रही है, फिर वो लाइनों की सफाई की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि GM साहब अपना वादा वफा करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारे तो पहले थोड़ा शुक्रिया अदा कर रहा कनूर चैनल वाला जेड़े मुख्तसर जे टाइम में इत्थे आए टोकसू के हालात वास्ते। डॉक्टर शफकत मलिक हुसैन साहब, खालिद महमूद साहब, मैं असी कल गए साहब मले वास्ते गैस के सिलसिले तो मैं इन्हों का भी शुक्रिया अदा करना दो नाज़म का तो चेयरमैन साहब का, क्यों इन्होंने एक महल्ले का गम है। ये गम इस वास्ते भी महल्ले गैस को नहीं, कई दिहाड़ियाँ तो को नहीं, तो उस वजह तो इन्होंने गम है तो गम के वजह तो अगेन अपनी कोशिश करते पे। तो मैं इन्हों का शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे महल्ले की तरफों। मतलब 14 दफ़ा लाहौर गए सन, अलहमदुल्ला अपने जेब पैसे ला के MNA PN लैके गए, तो उन्होंने मैं जितना शुक्रिया अदा करना इन्हों का काम है। जज़ाकल्लाह जी। मैं KN न्यूज़ नू खुश आमदेद कहना, बड़ी मेहरबानी जज़ाकल्लाह कि तुहाडे वसादत नाल साडे इलाके दे मसाइल जिहड़े ने वो तुसीं बहुत उजागर करदे हो। तो मैं जनाब अली डॉक्टर शफकत साहब, खालिद महमूद, सरवर खान साहब का शुक्रिया अदा करना कि साडे इलाके च गैस का बहुत इशू है। साढ़े बच्चे सवेरे बगैर नाश्ते तो बेचारे जाने ने स्कूल और लोग जितने भी मुलाजिम पेश लोग। बुहाना में खाद का बुरहान शिद्दत अख्तियार कर गया। मसनूई किल्लत पैदा करके खाद डीलर यूरिया खाद महंगे दामों फरोख्त करने लगे। इंतजामिया ने खाद माफिया के सामने घुटने टेक दिए। किसान यूरिया खाद के असूल के लिए रुल गए। किसानों का एहतजाज करते हुए कहना था कि ब्लैक में खाद 3000 रुपये तक फरोख्त हो रही है। इंतजामिया खाद को सरकारी नर्ख पर फरोख्त कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हुकूमत अमल दरामद कराने के लिए ठोस इकदाम करे। नारग मंडी में सुई गैस की लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारग मंडी में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। अवाम अब भूखे रहने पर मजबूर हो चुके हैं। मुतासरीन ने बताया सुई गैस हुकाम ने सर्दियों का शेड्यूल भी जारी कर रखा है, जो 15 अक्टूबर से नाफिज अमल है। 3 माह गुजर चुके हैं, अब तक इस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। नए शेड्यूल के मुताबिक 24 घंटों में 6 घंटे सुबह दोपहर शाम 2-2 घंटे के लिए सुई गैस फराहम की जाएगी, लेकिन ये सिर्फ ऐलान की हद तक है। इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। अवाम परेशान है। वफाकी वजीर राना तनवीर सैन का हल्का है, वफाकी वजीर हैं। अवाम ने इनसे सुई गैस की फराहमी का मुतालबा किया है, जबकि मुतासरीन की ज़बानी सुनते वो क्या कहते हैं। जी नाश्ते के करके स्कूल जाना होता है, उसके अंदर भी बहुत परेशानी आ रही है पेरेंट्स को। और इसी तरह दोपहर को तो सारा दिन जो गैस नहीं होती, ताकि जो बच्चे स्कूल से वापस आए उनको घर वाले खाना पर बना के दे सके। मखसूस औकात में शाम के टाइम थोड़ी बहुत गैस मिलती है, और ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा बहरान है। और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की नाकामी है कि वो इस मैनेजमेंट के अंदर अपने आप को पूरा नहीं उतार रही। गवर्नमेंट सिर्फ अपने एक दूसरे के ऊपर मुकदमात बनाने के ऊपर लगी हुई है कि किसने किसको गिरफ्तार करवाना है, लेकिन जो असल मसला है, जो बुनियादी मसाइल हैं लोगों के घरों के जो मसाइल हैं, उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है। तो मेरी गुजारिश है ये फेडरल गवर्नमेंट से भी और सूबाई से भी कि मेहरबानी फरमाएं। अब खबर शामिल करें रियानाला खुर्द से, जहां पर क्रिसमस के मौके पर तमाम चर्चेस के बाहर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। SHO थाना सिटी फरक शहजाद भट्टी का कहना है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पंजाब पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। मसीही भाइयों की खुशियों के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। गाजी में DPO हरीपुर ने मौजूदा सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र थाना गाजी चौकी, पीनिया, गाजी अदालत और सर्कल गाजी के चर्चिज़ का दौरा किया। थाना गाजी चौकी पीनिया के इमारात का मुआयना किया और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। मुहर्रर थाना जात
चौकियात को आने वाले साइलिन के साथ मुतअद्दिल रवैया और खुश अखलाकी से पेश आने की हदायत दी। ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान जवानों को मौजूदा हालात में सिक्योरिटी के हवाले से अलर्ट रहने और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के मुतालिक ज़रूरी हदायत दी। DPO और हरिपुर ने पुलिस अफसरान जवानों को कहा कि अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए दाखिली खारजी रास्तों पर चेकिंग के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाएँ, अपने इर्द गिर्द मशकूक अफराद और गाड़ियों को पर कड़ी नज़र रखें, अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हफाजी तदाबीर अख्तियार करते हुए बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट लाजमी इस्तेमाल करें ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा होने से बचा जा सके। ड्यूटी के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी है। दौरान ड्यूटी किसी भी किस्म की कोताही काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। अगर ड्यूटी के दौरान कोई जवान किसी भी किस्म की कोताही या लापरवाही या गफलत का मुर्तकब पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची में सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें कमिश्नर और एडिशनल IG कराची समेत हसास अदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। मजीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। क्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास और IG सिंध की जेर सदारत सिक्योरिटी के हवाले से इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें कमिश्नर कराची, एडिशनल IG कराची, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, DIG CTD, ज्वाइंट DG IB, DIGs ईस्ट साउथ वेस्ट, CIA और ट्रैफिक पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान साबका इजलास में सिक्योरिटी के लिए मंजूर शुदा लाएअमल पर पेशरफ का जायजा लिया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान, कायदे आजम डे, क्रिसमस डे और नए साल की तकरीबात की मुनासबत से सिक्योरिटी का भी जायजा लिया गया। इजलास में कराची में मौजूदा अमन अमान की सूरत हाल और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से और आदि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ रेंजर्स व पुलिस की मुश्तरका ऑपरेशंस तेज करने व शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पर चेकिंग के अमल को मजीद सख्त बनाने की हिदायत जारी की गई। इजलास के दौरान न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान, कायदे आजम डे, क्रिसमस डे व नए साल की तकरीबात के दौरान सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने और किसी भी किस्म की सिक्योरिटी खदशात से निमटने के लिए रेंजर्स, पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से मुश्तरका लाएअमल मंजूर किया गया। कैमरा टीम के साथ। और अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और जिला कौंसिल के अफसरान के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नक्शा जात की फीस जमा न कराने वालों की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएंगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अब्दुल्ला खुरम नियाजी की हिदायत पर नक्शा जात की फराहमी तेज करते हुए जिला कौंसिल के 9 नक्शा जात मालकान के हवाले किए और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के 13 नक्शे मंजूरी के बाद मालकान के सुपुर्द किए। उन्होंने मजीद कहा, बिल्कुल हम जो है सियासत के लोगों से मुखातिब होकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी पूरी कोशिश है कि हम ट्रांसपेरेंसी से काम करें। आप जो सिलसिले हैं जिस तरीके से भी आप समझते हैं कि दफ्तरी मामला है उसको ट्रांसपेरेंट करें, बेहतर करें और बेहतर से हमने बेहतर DPDC की थी और ख़ास तौर पर कन्वर्जन के बहुत सारे केसेस अप्रूव किए थे। तो शिकायत से बचने के लिए ताकि लोग निचला तबका जो है निचले हमारे अहकाम में आप लोग एक्सप्लॉइट न कर सके, तो आज 21 नक्शे जो है उनसे पास करा के अपनी टीमों से और जितने भी हमारे ओनर थे उनको खुद बुला के हमने हाथ से डिलीवर किए ताकि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो। जो ओपिनियन है पब्लिक ऑफिस के बारे में कि यहाँ पर खुदा भरोसा जो है जब तक करप्शन ना की जाए या जब तक उनको पैसे न दिए जाए। लकी मरवत में डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर ज़ियाउद्दीन अहमद ने थाना बरकी का अचानक दौरा किया। SP इन्वेस्टिगेशन मुराद खान भी उनके हमरा थे। DPO लकी मरवत ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों से मुलाकात की और सिक्योरिटी इंतजामात के तनाजुर में मुनासिब हदायत जारी करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क दुश्मन जराइम पेशा अनासर मशकूक अफराद की नकलो हरकत पर कड़ी नज़र रखें। उन्होंने एहलकारों पर जोर दिया कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट लाजमी इस्तेमाल करें और हमा वक्त चौकना रहते हुए अपने पेशा वराना फ़राइज़ मजबूती और ईमानदारी और जानफशानी से सरंजाम दें। हरीपुर में तंबाकू नोशी के नुकसानात के हवाले से सेंट्रल जेल में एक रोज़ा सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें कमांडेंट फौजिया ताज और जेल अफसरान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हरीपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। महकमा जेल खाना जात, खैबर पख्तूनख्वा और हेल्थ डिपार्टमेंट के बामी इश्तराक से सेंट्रल जेल हरीपुर में तंबाकू नोशी के तदराक के हवाले से एक रोज़ा सेशन का इनेकाद किया गया। सेशन में सूबा भर के जेलों से ताल्लुक रखने वाले 100 के लगभग SHOs की शिरकत। तमाम शुरका का सूबा भर को तंबाकू नोशी से पाक करने का अज़म।
कोऑर्डिनेटर फॉर टोबैको कंट्रोल मोहम्मद अजमल शाह ने शुरा से खिताब करते हुए तमाम सरकारी व नियम सरकारी व दफातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी की ममानत और इसके तदराक के हवाले से बनाए गए कवानीन से मुतल्लक तफसीली तौर पर आगाह किया। इस मौके पर कमांडेंट सेंट्रल जेल हरीपुर फौजिया ताज ने एक रोज़ा सेशन के हवाले से बातचीत करते हुए कहा, ये हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सेशन था जिसमें ना सिर्फ उन्होंने बताया कि तंबाकू नोशी से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और एक्टिव जो स्मोकर्स होते हैं उसके साथ जो बैठे दूसरे लोग होते हैं उन पे क्या असर पड़ता है और इसके क्या क्या सोशल लिहाज से भी क्या क्या नुकसानात होते हैं, उनकी फैमिली को क्या क्या फेस करना पड़ता है। ये समझे कि ये रूट कॉज है नारकोटिक्स का कि इन्होंने हमारे ट्रेनिंग्स को बहुत ज़बरदस्त किस्म का सेशन दिया कि हम अपने बच्चों पे नज़र रखें कि हमारे बच्चे किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि एक रोज़ा सेशन से कमांडेंट फौजिया ताज के अलावा डायरेक्टर आगाज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन साजिदा मलिक ने भी खिताब किया और इस सेशन के इनेकाद पर फौजिया ताज का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि इस सेशन खबरें और भी हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे पास साथ रहिएगा। शुक्रिया। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 109 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों का इंकशाफ। इस्लामाबाद इंतजामिया का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई न करना सवालिया निशान बन गया। गैर कानूनी सोसाइटीज़ की इश्तिहारी मुहिम भी अरूज पर। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से मलिक जुनैद की इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 100 से जायद गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों का इंकशाफ सामने आ गया। इस्लामाबाद इंतजामिया का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई न करना भी एक सवालिया निशान बनकर रह गया। इस्लामाबाद में मंजूर करदा हाउसिंग स्कीमों की तादाद 47 है, जबकि इसके बरक्स गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तादाद 100 से जायद है, जिनकी तशहीरी मुहिम भी अरूज पर है। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज सादालू अवाम को चूना लगाने में मसरूफ अमल, लेकिन इस्लामाबाद इंतजामिया और सीडीए की जानिब से कोई कार्रवाई न होना भी एक लम्हा फिक्रिया है। सीडीए की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में न लाने की वजह से लोग अंधाधुंध गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज पर एतमाद करने पर मजबूर। इस्लामाबाद के जोन 4 में सबसे ज्यादा 70 से ज्यादा गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें मौजूद हैं। जोन 2 में 5 और जोन 5 में 27 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज मंजरे आम पर आ गयी। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की आगाज की तारीख और स्पॉन्सर्स के नाम तक मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद फाइल्स फरोख्त करने का काम अरूज पर है। अब देखना होगा कि कार्रवाई करने वाले अदारे कब तक खरगोश की नींद सोए रहेंगे। सीबीडी पंजाब की जानिब से कायदे मोहम्मद अली जना को खराज अकीदत पेश किया गया। पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लाहौर में सीबीडी पंजाब साइट पर नस्ब बुलंद पायल 1 पर कायदे आजम का पोर्ट्रेट अवेजा करके बानिया पाकिस्तान को शानदार खराज अकीदत पेश किया। कायदे आजम का ये पोर्ट्रेट 50 फीट बुलंद है। लाहौर की सड़कों पर असलहा के जोर पर डकैती की वारदात करने वाले 2 मुल्ज़मान इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समनाबाद खालिद महमूद ग्रोसी की हिरासत में। गिरफ्तार मुल्ज़मान में हमाद उर्फ मादू और उसका साथी सफियान शामिल है। मुल्ज़मान के कब्जे से 3 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका और नाजायज़ असलहा भी बरामद कर लिया गया। यहाँ पे आपको बताएं कि लाहौर की सड़कों पर असलहा के जोर पर डकैती की वारदात करने वाले 2 मुल्ज़मान इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समनाबाद खालिद महमूद ग्रोसी की हिरासत में। गिरफ्तार मुल्ज़मान में हमाद उर्फ मादू और उसका साथी सफियान शामिल हैं। मुल्ज़मान के कब्जे से 3 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका भी और नाजायज़ असला भी बरामद कर लिया गया। इस हवाले से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम। जी वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखेंगे समनाबाद पुलिस ने जो है वो 2 ऐसे डाकू गिरफ्तार किए हैं जो कि शहरियों को वारदात के दौरान फायरिंग करके जख्मी भी करते थे। अगर बात की जाए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की, तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन खालिद गोरसी ने जो है वो 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जा से तकरीबन 3 लाख रुपए का सामान जो है वो बरामद किया है, माल मसरूका। वारदात की अगर बात की जाए तो जिस तरह से लारियडा, बदामी बाग, मिसरी शाह,
اشاد باغ اور دیگر تھانوں کی حدود میں یہ ڈکیتی کی واردات کرتے تھے. تو جس دن جو ہے وہ سمنا آباد پولیس نے ان کو گرفتار کیا اس دن بھی یہ ڈکیتی کی واردات کر رہے تھے, جن کے قبضہ سے جو ہے وہ پسٹل بھی جو ہے وہ برآمد کیے گئے ہیں, مال مسروقہ برآمد کیا گیا ہے. میری جب انچارج انویسٹیگیشن خالد گوسی سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ 2 ملزمان جو ہے وہ اس طرح کی واردات کرتے تھے, خاص کر اقبال ٹاؤن کے علاقہ میں یہ ڈکیتی کی زیادہ تر واردات کرتے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اندھیر مچا رکھا تھا. ڈولفن پولیس نے کئی بار ان کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن جو ہے وہ کامیابی کا صحرا جو ہے وہ خالد گورسی کے سر پہ سجا اور دونوں ملزمان کو گرفتار کیا اور ان کے قبضہ سے جدید اسلحہ برآمد کیا گیا اور 3 لاکھ سے زائد کا مال مسروقہ برآمد کر کے ان کے خلاف مقدمات کی اگر بات کی جائے تو CRO ریکارڈ کے مطابق دونوں ملزمان جو ہے وہ ریکارڈ یافتہ ہیں. بہت شکریہ وسیم صابر, آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. شہداء داد کوٹ میں سیلاب متاثرین کو مسائل کا سامنا, علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے. مزید جانتے ہیں عبدالحمید بھٹی کی اس رپورٹ میں. شہداد کوٹ میں حکومت کے دعوے دم توڑ گئے. مسلسل 5 ماہ سیلابی پانی کھڑا ہونے کے خلاف امام بخش جمالی کے علاقے مکینوں نے راجہ الطاف بھٹی, امیر جان چانڈیو اور عزیز اللہ بروہی کی نگرانی میں DC کمبر شہداد کوٹ کے خلاف پریس کلب سے لے کر کوٹو موٹو چوک تک احتجاجی ریلی نکال کر مظاہرہ کیا گیا. ریلی میں شہر کے مختلف سول سوسائٹی کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. ریلی کے شرکاؤں نے DC کے خلاف غریبوں کے ساتھ انصاف کرو, امام بخش جمالی میں سیلاب کا پانی نکال کرو کے فلک شگاف نعرے لگائے. وہاں علاقے مکین اب سردیاں آ گئی ہیں, سردیوں میں اتنی وہاں کے علاقے مکین فاقہ کشی کا شکار ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں CM سندھ سے کہ اس ناہل DC کو ہٹایا جائے اور غریب لوگوں کو انصاف دیا جائے, ان کو جو پانی ہے ان کا نکال کے اپنے گھروں تک پہنچایا جائے. 5-6 مہینہ تھی ویا آहिनि, مسلسل اسانجو इहो पिटको आहे, अॼु ताणी असांजो पाणी न कढे वियो आहे. जेको असांजी ज़िंदगी आहे तमामु तकलीफ़नि में गुज़ारे रहिया आहियूं. 21-25 जेके ॻोठ आहिनि असांजा पाणी में आहिनि, हिननि खे को तरस ई नथो अचे, हिननि खे को पंहिंजा बचा ई न आहिनि, हे को यज़ीद ई न लाइ छा. असां पिटे पिटे थकी पिया आहियूं पर हिननि खे को अहसास ई नथो थिए. CM सिंध खे, साईं मुराद अली शाह खे, ॿियनि खे जेके असांजा MP आहिनि, मिनिस्टर आहिनि, उन्हनि खे असां ख़ुदा जो इस्म विझूं था, ख़ुदा असां ते रहम कयो. انہوں نے مزید کہا کہ اگر امام بخش جمالی کا پانی نکاسی نہیں کیا گیا تو DC آفس کے سامنے تیسرا دھرنا دیا جائے گا. اور جب سے DC اور AC کبو سید خان تعینات ہوئے ہیں تو سیلاب. گمبٹ میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے میڈیا سینٹر, سول سوسائٹی اور شہریوں کی طرف سے ریلی نکالی گئی. ریلی میں صحافی سمیت شہریوں نے شرکت کی اور نئے آرمی چیف سید عاصم منیر کی کارکردگی کو سراہا. ریلی میں پاک آرمی کی حمایت میں نعرے بازی کی گئی. ریلی کے شرکا کا کہنا تھا کہ پاک آرمی کے ساتھ ہر وقت ساتھ ساتھ ہیں, پاک فوج کے خلاف ہر قسم کی سازشیں ناکام بنا دیں گے. سابق وفاقی وزیر عمر ایوب خان نے حلقہ پی کے 42 مین روڈ کا افتتاح کر دیا. مزید جانتے ہیں محمد علی مشوانی کی اس رپورٹ میں. سابقہ وفاقی وزیر عمر ایوب خان نے باسو میرا روڈ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا. یہ روڈ 1 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا جائے گا. افتتاح کے موقع پر جہازہ والا گروپ کے رہنما شاہد اقبال خان, جنرل سیکرٹری ہری پور PTI اللہ یار خان, افتخار شاہ مشوانی, لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی. سابقہ وفاقی وزیر عمر ایوب خان نے کہا کہ ہم نے اپنے حکومت دور میں اپنے علاقوں میں اربوں روپے کا ترقیاتی کام کیا. موجودہ حکومت نے عوام کو سخت مشکل میں ڈال دیا. غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. بجلی کے بلوں میں اضافہ کر کے غریب عوام کو تنگ کیا جا رہا ہے. سابقہ وفاقی وزیر عمر ایوب خان نے مزید کیا کہا. یونٹ ابھی ٹائم اور ڈیٹ آپ کا یاد رکھ لیں, اخباروں میں آپ جا کے چیک کر لیں. یہ یونٹ جائے گا 85 روپے یونٹ, 85 روپے یونٹ. یہ امپورٹنٹ حکومت نے یہ ملک کو تحفہ دی ہے. مہنگائی عروج پہ, یہ ان 10 مہینوں میں اس امپورٹنٹ حکومت کے دور میں آپ نے یہ مہنگائی کا سیلاب دیکھا ہے کہ کس طرح ہے؟ آپ کو محسوس ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اور یہ مزید بڑھے گا بدقسمتی سے, کیونکہ یہ بیرون ملک آقاؤں پہ کہنے پہ چل رہے ہیں. ملک کا انہوں نے دیوالیہ نکال دی ہے. بہاولپور میوزیم کی پبلک ریلیشن آفیسر نادیہ نورین نے کہا ہے کہ بہاولپور میں میوزیم ترقی اور جدت کے دور میں داخل ہو چکا ہے اور جلد ہی اس کا شمار بڑے عجائب گھروں میں ہوگا. مزید جانتے ہیں فیصل جاوید خان کی اس رپورٹ میں. بہاولپور میوزیم کی پبلک ریلیشن آفیسر نادیہ نورین نے کہا کہ بہاولپور میوزیم پنجاب کا دوسرا بڑا عجائب گھر ہے جو ترقی
और जिद्दत के दौर में दाखिल हो चुका है और जल्द ही इसका शुमार बड़े अजायब घरों में होगा। बहावलपुर म्यूज़ियम कौमी और इलाकाई हम आहंगी में कलीदी किरदार का हामिल है। बहावलपुर म्यूज़ियम एक असासा और हमारी नस्लों के लिए मेरास है। इस खिते में म्यूज़ियम का क़याम यहाँ के वासियों के लिए एक नेमत है। दूर दराज से आने वाले लोगों ने रियासती नवारदात में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यहाँ मौजूद नवारदात सदियों की तरीक अपने अंदर समाये हुए हैं। बहावलपुर म्यूज़ियम का क़याम 1976 में अमल में आया। ये पंजाब का दूसरा बड़ा म्यूज़ियम है। मोर देन 5000 आर्टिकल हैं हमारे पास और 18 कैनाल का एरिया है जिसमें 12 इसके सेक्शंस बनाए गए हैं। साउथ पंजाब का ये वाहिद म्यूज़ियम है जो कि कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री और इसी तरह पाकिस्तान जो मूवमेंट स्ट्रगल है हमारी उसके पोर्ट्रेट्स और बहावलपुर स्टेट की चीज़ें यहाँ पे प्रिजर्व्ड हैं। नंबर ऑफ़ पीपल्स विज़िट करते हैं जिसमें नेशनल, लोकल और इंटरनेशनल लोग शामिल हैं। विजिटर्स की अलावा हमारे पास जो टूरिस्ट हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद आती है और इनमें ट्रिप्स भी हमारे पास शामिल हैं। एजुकेशनल ट्रिप्स हैं बच्चों के, वो आते हैं और इसको एक एज अ रिसर्च सेंटर के तौर पर मतलब जो गैर रस्मी तालीम है उसके फ़रोग में म्यूज़ियम का किरदार बहुत पॉजिटिव, बहुत एक्टिव है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं और गेन करते हैं जब वो तहरीक पाकिस्तान गैलरी में जाते। और अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि खिपरों में नामवर माहिर तालीम मौलवी मोहम्मद हसन की 45वीं बरसी के मौके पे टाउन कमेटी हॉल में तकरीब का इनकाद किया गया। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रज़्ज़ाक राजपूत की इस रिपोर्ट में। इमदान मौलवी मोहम्मद हसन पौड़ की 45वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर तालमी माहिर उस्ताद जुमन गज्जू, एम जुमन कुम्हार, उस्ताद लगारी, अरबाब अली समेजो, हैदर समेजो, डॉक्टर मीरा आलम मरी, सिकिलद रहमो समेत और शायरों ने मौलवी मोहम्मद हसन पौड़ की तालीम के हवाले से की गई खिदमतों पर रोशनी डाली। मौलवी मोहम्मद हसन एक बहुत ही अजीम इंसान थे जिसने तालीम और समाजी खिदमत दोनों मैदान है उनमें खिदमत की। मौलाना मोहम्मद हसन पौड़ ने जो खिदमत की हैं बहुत ही शायान शान है। हमारे खिपरों की सरजमीन पे एक इतने नामूर शख्सियत जो पैदा हुई थी जिन्होंने हमारे इलाके में जो तालीमी खिदमत की थी वो आज हम उसको याद कर रहे हैं और आज उस शख्सियत की वजह से आज हमारे इदारे भी चल रहे हैं जो इदारे बने हुए थे। आज उसको जो है ना तकरीबन 45 साल हो गए हैं। हम उसको याद करते, क्यों याद करते? उसने तालीम के शोबे में आके लोगों की बहुत खिदमत की हैं। आज जो 45वीं बरसी है मौलाना मोहम्मद हसन पौड़ की, तो ये एक शख्सियत था खिपरों का जो अछरोथर है उसकी ये शख्सियत है। इसने जो तालीम के लिए जब खिपरों में रुझान नहीं था तालीम का तब से इन्होंने ये IG पंजाब आमिर जुल्फकार खान की ज़ेर सदारत पहली RPOs कॉन्फ्रेंस का इनकाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दादू में क्रिसमस की मुनासबत से रैली निकाली गई जिसमें खूबसूरत ऊंट सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। बगी पर सवार नन्हे सांता क्लास ने रैली के शुरा में चॉकलेट और तोहफे तकसीम किए। खसूसी बैंड ने क्रिसमस की धुनें बजाकर समा बांध दिया। बस्ती डोगरा चर्च से शुरू होने वाली क्रिसमस रैली रवायती रास्तों से होकर वापस मुकामी चर्च पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। पास्टर आमिर का कहना था कि रैली का मकसद पाकिस्तान का मस्बत चेहरा उजागर करना है। गुजरांवाला में मसीही बरादरी की जानिब से रंगारंग क्रिसमस रैली निकाली गई। खसूसी लिबास ज़ेब तन किए खवातीन बच्चों समेत मसीही अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली में क्रिसमस की मुनासबत से सजे ऊंट सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। बगी पर सवार नन्हे सांता क्लास ने रैली के शुरा में चॉकलेट्स और तोहफे तकसीम किए। खसूसी बैंड ने क्रिसमस की धुनें बजाकर समा बांध दिया। टोंडोवालियार में क्रिसमस तकरीब का इनकाद किया गया जिसमें अहम शख्सियात समेत मसीही बरादरी ने भरपूर शिरकत की। मजीद जानते हैं नदीम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। क्रिसमस डे के सिलसिले में दारुल सुकून राशिदाबाद में एक पुरवका तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें बड़ी तादाद में स्पेशल बच्चों समेत मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खास बशप सिम्स मिशन चर्च हैदराबाद, साबका जिला चेयरमैन मखदूमी और अली मोहम्मद बल्लारी, सर इमरान, सैयद जान मोहम्मद शाह, मैडम गुजरा कैसर, वफा माजिद आरेसर, अब्दुल हमीद अब्बासी समेत दीगर मेहमानों ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खास ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि आज का दिन हमारे लिए ईद का दिन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बंदों की खिदमत का पैगाम दिया। जो लोग भी अल्लाह के बंदों की खिदमत के कामों में अपना किरदार अदा करते हैं वो काबिल लायक हैं। दारुल सुकून राशिदाबाद की इंतजामिया को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनकी काविशों के सिवा आज दारुल सुकून में स्पेशल बच्चों का टैलेंट देखकर बड़ी खुशी हुई और जो लोग इन बच्चों की खिदमत कर रहे हैं वो भी काबिल तारीफ हैं। क्रिसमस का दिन मनाया जा रहा है दारुल सुकून के अंदर जो कि मोहब्बत और अमन सुलह सलामती का दिन है और इन बच्चों ने बड़े भरपूर तरीके से इस दिन को पहचाना है और अपने
ڈانسز کے ذریعے گیتوں کے ذریعے اس کو ظاہر کیا ہے. سکون میں میری کرسمس کا دن منایا گیا اور اس کامیاب پروگرام پہ میں یہاں کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کروں. ٹنڈو آدم شاہ عبداللطیف میوزیکل لائبریری میں کرسمس کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. مقامی اسکول کے طلباء طالبات کی جانب سے پیش کیے جانے والے مذہبی گیت کے ساتھ مہمانوں کو سندھ کی ثقافتی اجر پیش کی گئی. اس موقع پہ کرسمس کا کیک کاٹا گیا. رنگا رنگ تقریب میں کرسچین کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. شرکا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی ہم آہنگی سے امن و بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے. جامپور سوشل ویلفیئر آفس میں خصوصی بچوں کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر جامپور ذوالفقار علی خان تھے جنہوں نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے. اس موقع پہ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ خصوصی بچے ہمارا اصل سرمایہ ہے, ان بچوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. سوشل ویلفیئر افسر کا کہنا تھا کہ ہیلپنگ ہینڈ کے تعاون سے ان میں سامان تقسیم کیا گیا جس میں خشک راشن, رضائیاں اور دیگر سامان شامل تھا. اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کی ہیڈ مسٹریس نے سوشل ویلفیئر افسر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اسپیشل بچوں کو معاشرے کی طرف سے توجہ ملے تو یہ بچے کسی سے کم نہیں. ٹانک میں سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ تقریری مقابلے کا انعقاد. مزید جانتے ہیں آدم خان کنڈی کی اس رپورٹ میں. سیرت النبی کے موضوع پر اسکائی ایجوکیشن اسکول میں جمعیت طلباء اسلام کے زیر نگرانی تقریروں کے مقابلے ہوئے. Mr. President, Sirat is an Arabic word which corresponds to nature or attributes of. But the whole world is groping in darkness. Humanity is shivering. Cruelty is at its peak. Daughters are being buried alive. Hostilities between tribes lasted for centuries. پرنسپل شکیل ناصر نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا. اور دیگر تمام معززین شہر, مہمانان گرامی, میرے میڈیا کے دوست, مختلف مدارس اور اسکولوں سے آئے ہوئے طلباء اور باقی تمام مہمانان گرامی کو ہم دل کی گہرائیوں سے یہاں آنے پہ خوش آمدید کہتے ہیں. تقاریر کے مقابلے اردو اور انگریزی زبان میں ہوئے. آصف اللہ ایڈوکیٹ, مفتی اللہ نور, سعید انور محسود اور شعیب فاروقی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت بیان کی. تقریب میں ٹانک کے علماء اکرام, معززین شہر, جمعیت طلباء اسلام اور اسکولوں کے طلباء نے شرکت کی. تحصیل میئر ٹانک صدام خان. صادقہ آباد میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ شہریوں نے خشک میوہ جات کی خریداری شروع کر دی. مزید جانتے ہیں صادقہ آباد سے علی میرانی کی اس رپورٹ میں. سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی صادق آباد کے شہریوں نے خشک میوہ جات کی خریداری کرنا شروع کر دی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ خشک میوہ جات میں بادام, اخروٹ, چلغوزہ, انجیر, مونگ پھلی یہ سردیوں کا اہم تحفہ ہے جو سردی کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ ہر بیماری کے لیے بھی مفید ہے. اس ڈرائی فروٹ کو سردی میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے. دوسری جانب سردی آتے ہی دکانداروں کے کاروبار بھی چمک اٹھے. سردی کی سوغات خشک میوہ جات جہاں سردی کو کم کرتا ہے تو وہیں پر فیملی کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگانے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نون نیوز.